हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 5th चैप्टर का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं की खेलों में सहभागिता। ओके, कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, इट इज द नाउ दैट द पार्टिसिपेशन of women in sports till in 19th century was not only for of matter but they are not allowed to the watch sports competition also, but the wind of the change gradually set in social environment and women started taking part in sports in the 20th century. When the history inverted no events related to women's participation in sports before the 20th century in found the most of the historians are the silent in this regard. In the later part of the 20th century had the repeat change in the social structure and environment took place and the male dominate society that the keep the women's confined to the kitchen and the four walls of the house, allowed women to move the faster in very areas. As the result, women's participation in the area of sports also began to the experience. Indian women participated in first Olympics in 1952. In the 1984 Olympics in India, women athlete PT Usha Women's athlete PT Usha left her performance on the global platform, having the missed winning bronze medal. By the hand of the second, Karnam Malleswari was the first Indian woman to win bronze medal in Olympic Games in 2000. Both Saina Nehwal and Mary Kom won the bronze medal in the 2012 London Olympic. In Indians, in addition to the Olympics, there is a long list of women's participation in other sports festivals in which the women make the notable performance. These include Anju Bobby George, PB Sindhu, Sakshi Malik, Anjali Bhagwat, Sania Mirza, Jwala Bhutta, Jhulam Goswami, Tejaswini Saswat, Tanya Sachdev, Mitali Desai, Raj Krishna Punia, Ankita Das, and Garima Chaudhary, Seema Until, SN Ganu Karmakar. Its women today are able to compete with the men in sports while the excelling with their performance on the global platform. So in the very short period of time, in Indian women have the stood up to the world level performance while the ensuring their participation in sports. This is the greatest and the notable success of women, which the proves that in the opportunity and the encouragement are giving the have courage to compete with men. भारत में महिलाओं
की खेल कूद में भागीदारी के इतिहास पर नज़र डालने से ज्ञात होता है कि 19वीं शताब्दी तक खेल कूद में महिलाओं की भागीदारी तो दूर की बात है, उन्हें खेल प्रतियोगिताओं को देखने तक की अनुमति नहीं थी। परंतु धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में बदलाव की बयार बहनी प्रारंभ हुई और 20वीं सदी में महिलाओं की खेलकूद में भागीदारी होना प्रारंभ हो गई। भारतीय महिलाओं ने 20वीं सदी के मध्य में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। इतिहास को खंगालने पर 20वीं सदी के पूर्व भारत में महिलाओं की खेलकूद में भागीदारी के साक्ष्य नहीं मिलते थे। अधिकांश इतिहासकार इस विषय पर मौन ही हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक संरचना व परिवेश में तेजी से बदलाव आना प्रारंभ हुए और पुरुष प्रधान समाज ने जिन महिलाओं को चूल्हे चौके या घर की चारदीवारी तक सीमित कर रखा था, उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना प्रारंभ किया। फलस्वरूप खेलकूद के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। सन 1952 के ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भागीदारी की। सन 1984 के ओलंपिक में भारतीय महिलाएं एथलीट पीटी उषा ने अपने प्रदर्शन की धक विश्व पटल पर जोड़ी, जो कि सेकंड के 100वें हिस्से से इस कांस्य पदक प्राप्त करने से वंचित रह गई। सन 2000 ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला थी। सन 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल एनसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक के अतिरिक्त अन्य खेलों उत्साहों में महिलाओं की भागीदारी की लंबी सूची, जिसमें महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इसमें अंजू बॉबी जॉर्ज, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, अंजलि भागवत, सानिया मिर्जा, ज्वाला भुट्टा, झूलन गोस्वामी, तेजस्वी सावंत, तान्या सचदेव, मिताली देसाई, राज कृष्णा पुनिया, अंकिता दास, गरिमा चौधरी, सीमा अंतिल, एनएस घानू कमरकर आदि प्रमुख थे। आज महिलाएं खेलकूद में पुरुषों के समांतर भागीदारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ विश्व पटल पर अपनी धाक छोड़ने सफल रही है। अतः बहुत कम अवधि में भारतीय महिलाओं ने खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर विश्व स्तर के प्रदर्शन की बराबरी पर भारत को ला खड़ा कर दिया है। यह महिलाओं की महानतम एवं उल्लेखनीय सफलता है, जो कि सिद्ध करती है कि यदि अवसर व प्रोत्साहन मिले तो वे कम से कम कदम से कदम मिलाकर पुरुषों की बराबरी पर चलने का जज्बा रखती है। नेक्स्ट, केस ऑफ द लेग्स पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण। Traditional and culture have the deep impact of every serve on life. Sports too in the affected by the same. Thus, as per India, traditional only men participation in sports, but with the spread of the education movement to vegan to debate in various sports even today, we can see growing in participation of women in the cities and rural area. Despite the participation of women in such a less the compared to that of men and region are as the follow. प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक का सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। इनमें से खेल भी एक क्षेत्र है। भारतीय परंपराओं के अनुसार केवल पुरुष ही खेलों में भाग लिया करते थे, परंतु जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, महिलाओं ने खेलों के क्षेत्र में पदार्पण करना शुरू कर दिया। आज शहरों एवं गांवों में महिलाओं की खेलों में
में सहभागिता बढ़ रही है। इसके बावजूद भी महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा खेलों में सहभागिता काफ़ी कम है। इसके मुख्य कारण हैं: फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, सजगता का अभाव। द चीफ रीजन फॉर द low participation of women in sports is the lack of awareness. Most women are ignorant about their health as that they are too involved in domestic tasks other than this. There is the popular myth in our society that the states that women who participate in sports on the regular basis lose their femininity and the beauty. Such a view impact the interest of women in sports. सजगता का अभाव। महिलाओं की खेलों में भागीदारी में सजगता का अभाव मुख्य कारण रहा है। अधिकतर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहती, वह पारिवारिक कार्यों के संलिप्त रहती है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में कुछ मिथक भी प्रचलित है कि खेलों में भाग लेने से उनका स्त्रीत्व खतरे में पड़ जाएगा या उनकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ेगा। ये सभी धारणाएं महिलाओं की खेलों में सहभागिता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। Male dominated is the direct deterrent for the participation of women in sports. Men consider their monopoly in sports and thus demotivate women from the participating in the field of sports. पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज की मान्यता भी महिलाओं की खेलों में भागीदारी में बाधक है। पुरुष खेलों पर अपना अधिकार समझते हैं और घर की महिलाओं को खेलों के प्रति हतोत्साहित करते हैं। लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव। वोमेन इन इन्वॉल्वमेंट इन द डोमेस्टिक अफेयर गिव देम लिटिल टाइम टू participate in activities such as support. Most of the support related activities are considered in the morning or in the evening. Both this time as decided by the women in taking care of their home and family, and so participation in the sports gets limited. महिलाओं के द्वारा पारिवारिक उत्तरदायित्व को संभालने के कारण उनके पास समय का अभाव रहता है। खेलों में सहभागिता अधिकतर सुबह या शाम को होती है। दोनों वक्त महिलाओं को खाना बनाना तथा बच्चों की जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है, अतः महिलाओं की खेलों में सहभागिता नहीं हो पाती। लैक ऑफ इंटरेस्ट। Most women lack the interest in sports. They make so interested in games and sport during the childhood, but as they grow older and interest start to fade away. रुचि का अभाव। अधिकतर महिलाओं में खेलों के प्रति रुचि का अभाव होता है। कुछ महिलाओं में खेलों के प्रति रुचि केवल बाल्यावस्था तक रहती है तथा इसके उपरांत प्रायः समाप्त हो जाती है। इनसिक्योरिटी। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स रिक्वायर द मोर टाइम देन अदर एक्टिविटीज एंड द times and is required to the travel to other place. Therefore the double regarding safety while the traveling or going to unknown playground creates and scenes of the insecurity. This the creates on the obstacle for women's participation in sports. असुरक्षा। खेलों में भाग लेने के लिए हमें अतिरिक्त समय देना पड़ता है या खेलने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। खेल के मैदान या आने जाने में असुरक्षा के कारण भी महिलाओं की
खेलों में भागीदारी नहीं हो पाती। Lack of female coaches. The number of female coaches in our country is next to nil due to family responsibility. Women cannot keep the required time to coach other sportsmen, parents, and are reluctant to send their daughter from the coaching to male coaches. This leads to the less participation of girl and women. महिला कोचों का अभाव प्राय यह देखने में आता है कि महिला कोचों की संख्या नगण्य कम है या महिला कोच अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण कोचिंग के लिए समय नहीं दे पाती। अभिभावक पुरुष कोच के संरक्षण में लड़कियों को खेल प्रशिक्षण देने में संकोच करते हैं। फलस्वरूप लड़कियों की खेलों में भागीदारी कम हो जाती है। लेस द इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टर्स इन हैज बीन noticed that the other than a few sports women supporting the event do not attract too many spectators, therefore the sports women do not get the required motivation. प्राय ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ खेलों को छोड़ दे तो महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं को देखने में दर्शक कम रुचि लेते हैं। अतः महिला खिलाड़ियों को जो नैतिक सहारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, दर्शकों की कमी हो जाती के कारण। नेक्स्ट, lack of female role model. Our country has limited the number of sportswomen who may have achieved the success in the international tournament or the Olympics for that matter, so the women do not have role model of home they can look up. However, in the past few years the sporting circuit has seen number of sportswomen doing the well, and this has begun to bring about a positive change in the participation of women in sports. अनुकरणीय महिला खिलाड़ियों का अभाव। ऐसी बहुत कम महिलाएं खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके ख्याति प्राप्त की है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव महिलाओं की खेलों में सहभागिता पर पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके ख्याति प्राप्त की है, जिसका प्रभाव महिलाओं के खेलों में भागीदारी पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट, lack of awareness regarding physical fitness. Most women believe that achieving physical fitness is only required for the men, whereas women only need to look beautiful. This is the myth. In fact, being physically fit enhance the beauty of women. शारीरिक क्षमता के प्रति जागरूकता का अभाव। कुछ महिलाओं को ऐसी मान्यता होती है कि शारीरिक दक्षता केवल पुरुषों के लिए ही है, उन्हें केवल सुंदर दिखना है, जो कि एक मिथ्या धारणा है। शारीरिक स्वास्थ्य होने पर सुंदरता में और भी चार चांद लग जाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ मीडिया अटेंशन। मीडिया द्वारा उपेक्षा। मीडिया डज नॉट गिव द रिक्वायर्ड importance to women in supporting event. The time and publicity given to the men supporting event in for more than what women's event are given.
महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं की उपेक्षा मीडिया द्वारा भी की जाती है। मीडिया जितना प्रचार प्रसार पुरुषों की खेल प्रतियोगिताओं का करती है, उतना यदि प्रचार प्रसार महिला खेल प्रतियोगिता का नहीं करती। नेक्स्ट, लेस इंटरेस्ट ऑफ पीर ग्रुप, सहपाठियों की कम रुचि। इन आवर growing year in the influence of peer group has a lot importance. If the peer group does not give the approval of participation in particular activity, the person tend to the avoid in. If girls so interested in any sports, other girls too are the attracted toward its। सहपाठियों की कम रुचि बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था दोनों अवस्थाओं में समूह गतिविधियां अत्यधिक प्रभावित करती है। प्रायः यह देखने में आता है कि जहां लड़कियां खेलों में सहभागिता करती हैं, वहां अन्य लड़कियों की खेलों की भागीदारी अधिक रहती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रीजन फैक्टर। Many supporting activities require the equipment that cost a lot of money. The charge of the coaching are also high. This also affected the participation of women in sports. आर्थिक कारण, कुछ खेलों में सामान आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण खेलने के लिए जाने का खर्च उठाना पड़ता है। इस कारण से भी खेलों में महिलाओं की सहभागिता प्रभावित होती है। नेक्स्ट, lack of encouragement. Most of the time parents do not encourage or motivate girls to participate in sports. They feel that the girl cannot go too far in the field of sports. प्रोत्साहन की कमी। बहुत सी लड़कियां खेलों में भाग लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अभिभावकों द्वारा भाग लेने से रोक दिया जाता है। जैसे माता पिता द्वारा अक्सर कह दिया जाता है कि लड़की खेल कर क्या करेगी, कुछ काम नहीं आएगी आदि। नेक्स्ट, lack of information. Parents and girls are not aware that they can take up the sports and profession. Being the trend in sports and participating in them can help girls and find job. सूचनाओं का अभाव। आज के दौर में लड़कियां भी खेलने को एक व्यवसाय के रूप में चुन सकती है या खेलों के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार की सूचनाओं का प्रायः अभिभावकों व लड़कियों में अभाव रहता है। This the case of help used to understand that there are various factors in our society that prevent the participation of women in sports. In the present time, be the spread of education and the awareness, we can see a dramatic change in the thought and the beliefs of people, lending and greater participation of women in sports. This society too is changing its view about women as supporting events. उपर्युक्त चर्चा में यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे कारण हैं जो महिलाओं की खेलों में भागीदारी को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वर्तमान में शिक्षा के प्रचार प्रसार व लोगों की सहजता के कारण महिलाओं की खेलों में भागीदारी नाटकीय परिवर्तन आ रहा है और लड़कियों की खेलों में सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओके, जा रही है। समाज का दृष्टिकोण भी महिलाओं की खेलों में भागीदारी के प्रति सकारात्मक होता जा रहा है। ओके, अपना 5th चैप्टर कंप्लीट।
एंड नेक्स्ट अपन 6 चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर वीडियो देखते रहना है और नोट्स हो सके तो बना लेना या तो इसको सेव करके रखना।